एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और मैं तो हैदराबादी दिल हैदराबादी है, लेकिन रहते लिखा है बहुत ही अच्छे शायर हैं। वो मेरी दरख्वास्त पर आज यहाँ मौजूद हैं। अदनान साजिद, जिसे सारी दुनिया गुड्डू दादा के नाम से जानती है, हमारे खुशकिस्मती है कि वो भी आज हमारे दरमियान अपने गुनाहों में मसरूफियत के बावजूद तशरीफ ला चुके हैं। मैं आज के जलसे का आगाज़ ज़ाहिर अली साहब के हज़रत करम हक़ से करना चाहूँगा। उससे पहले मैं मेहमानों को डाइस पर आने की दावत देता हूँ। मैं अदनान साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ। मैं जनाब जावेद मोहम्मद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ। हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान हैदराबाद का पाए का शाहजहां के पाए का नाम रोशन करने वाली एक ऐसी शख्सियत है, मुनफरिद है, जो अपना नाम सारी दुनिया में रोशन कर चुकी है। उसके साथ उनके नाम के साथ साथ हैदराबाद का नाम भी रोशन है। मेरी मुराद है जनाब शहाबुद्दीन साहब से, वो उनको भी मैं डाइस पर आने की ज़रूरत है। जनाब शहाबुद्दीन हज़रात गिरामी, मैं अब ज़ाहिर अली साहब से गुजारिश करता हूँ हज़रत करम पाक से आज के इस जलसे का आगाज़ फरमाएं। जनाब ज़ाहिर अली। जनाब ज़ाहिर अरमानी साहब खैरात कलाम पाक पेश कर रहे थे। इसके बाद सदर इजलास अली जनाब डॉक्टर मोहतरम फरीदुद्दीन सादिक साहब
جو اس محفل کے تاریخی ہیں، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ہندوستان کی جو ہمیں آزادی ہے اس موقع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر ہم تمام کو مخاطب فرمائیں۔ ڈاکٹر فرید الدین صادق۔ اکابرین جناب عدنان ساجد صاحب، گلو دادا جناب شاہ الدین صاحب اور جاہد محمد صاحب اور حاضرین شامل، آج ایک عنوان دیا گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول۔ میں 5-7 منٹ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہیں ہوتے تو یہ ہندوستان آزادی نہیں ہوتی۔ یہ صرف مسلمانوں کی انتھک کوشش قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آزادی سے ہم ہمکنار ہوئے ہیں، اور آزادی سے ہمکنار ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہی سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ خلافت آندولن جو 1920 میں شروع ہوئی تھی، وہ محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس خلافت آندولن کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن اور بھارت چھوڑو کا نعرہ بھی یوسف مہر علی نے بھارت چھوڑو کا نعرہ بھی یوسف مہر علی نے دیا۔ دیکھیے مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے آزادی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اور حاجی ثبوت صدیقی جو شوگر کے تاجر تھے، انہوں نے کلکتہ میں ایک نیا آبادی بسائی تھی، ایک نیا محلہ بسایا تھا، بزنس سینٹر بنایا تھا۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی تمام جائیداد فروخت کر ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے چندے میں دے دی تھی، اور خود کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں حاجی ثبوت صدیقی جو شوگر کے تاجر تھے۔ اسی طرح باٹا کی جو کمپنی آج کل مشہور جوتوں کی شوز جو بناتے ہیں، وہ کمپنی بھی ایک مسلمان کی تھی جسے انگریزوں نے ہتیا کیا، آج اس پر ان کا راج ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے یوگدان تھا ایک مسلم تاجر کا۔ آپ جانتے ہیں بھگت سنگھ کی جو پھانسی کی سزا ہونے سے پہلے اس کی پیروی کرنے کے لیے کوئی وکیل تیار نہیں، کوئی بھگت سنگھ کا کیس لینے انگریزوں کے ڈر سے کیس لڑنے کے لیے عدالت میں تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت بیرسٹر آصف علی بھگت سنگھ کا کیس عدالت میں لڑے، اور لیکن شوبھا سنگھ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے بھگت سنگھ کو پھانسی دی۔ انگریزوں کو ایک بہانہ چاہیے تھا، تو وہ بھی ایک مسلم ایڈوکیٹ تھا جو اپنے ملک کے باسی کو بچانے کے لیے، جس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کیس لڑا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ آپ جانتے ہیں کس نے لگایا تھا؟ آپ کو پتا ہوگا، حضرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ حضرت موہانی اور واحد شاعر بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے، انہوں نے یہ نعرہ انقلاب زندہ باد کا دیا تھا، جس کو سن کر نوجوانوں میں جوش، ان کے خون میں گرمی پیدا ہوتی تھی، ان کا خون کھولتا تھا، اور انگریزوں کے سامنے سینہ سپرد ہو کر کھڑے رہتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتی تھی۔ جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا تو وہ اپنے بغیر ہتھیار کے انگریزوں کے ہتھیار کو چھین کر مجھے لڑتے تھے۔ اور اس کے بعد غدر کا 1857 کا دور تو بڑا خونی دور تھا۔ 50,000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا، چن چن کر ایک عالم کو، مولویوں کو چن چن کر شہید کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت دہلی سے کلکتہ تک جتنے بھی درخت نظر آ رہے تھے ان پر مولویوں کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ بڑا ہی دل گردے کا کام تھا مسلمانوں کا اس وقت، جو اپنے آپ کو انہوں نے موت کے حوالے کیا دیش کی خاطر۔ اورنگزیب کے دور میں کوئی انگریز داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن بعد کے بادشاہوں کے دور میں انگریز داخل ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں جے ہند کا نعرہ جو آج سرحدوں پہ لگایا جاتا ہے، جے ہند جو نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ عابد حسین صفانی نے دیا۔ عابد حسین صفانی نے جے ہند کا نعرہ دیا تھا، جو آج بھی کئی جگہوں پہ تقاریر کے بعد، چاہے وہ بی جے پی کی میٹنگ ہو یا کانگریس کی میٹنگ ہو یا سرحدوں پر جے ہند کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو پرچم آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا، سارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں لایا ہے، یہ بھی جو ہے نا حیدرآبادی سریا طیب جی کا دیا ہوا ہے۔
ये भी एक मुसलमान थी। अरे कितना हमने देश का साथ दिया, कितने मुसलमानों ने क्या क्या किया। आपने आज कुछ किया नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चलाते हैं। आप तारीख से वाकिफ हैं, पढ़िए ये जो आज के बीजेपी के लीडर्स हैं या हिंदुत्व करना चाहते हैं, उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा तारीख की तरफ आएँ, तो उनको पता चलेगा जो झंडा लहराते हैं सारी दुनिया में बड़े फख्र से, वो एक मुसलमान करता। तैयब जी, सुरैया तैयब जी ने उसे अप्रूव किया, फाइनल किया था, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया था, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट। बहरहाल बहुत से चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। दारुल उलूम देवबंद का भी क़याम नौजवानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ तरबियत देने के लिए कायम किया गया था, जिसे मौलाना कासिम अली नदवी ने कायम किया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि घूम फिर कर बात वहीं आती है कि मुसलमानों के गेट ऑफ इंडिया पे जाकर देखिए कितने शहीदों के नाम मुसलमानों के पत्थरों पर टुंडा है। आप कहाँ थे उस वक्त आज़ादी के वक्त? आप तो अंग्रेज़ों के मोहर बन गए थे। अंग्रेज़ों को आप अपनी लोगों के बारे में जो है ना न्यूज़ पहुँचा कर उनसे पैसे ऐंठते थे। इसी तरह से एक 50,000 का इनाम 1857 में मौलवी अहमदुल्लाह शाह साहब जो अपने तकारीर में अंग्रेज़ों के खिलाफ होते थे, उनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया। आप जानते हैं कि मुगरी राजा सिंह नाम एक मुगरी करने की वजह से वो पकड़ गए और उनको फांसी दे दी गई। तो इस तरह के हम लोगों ने हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा नुमायाँ बोल रहा, बल्कि हमारा ही बोल रहा। मैं ये बड़े शान से कह सकता हूँ कि अगर मुसलमान ना होते तो आज़ादी कभी नहीं मिलती। आप जानते हैं जिस कॉलेज में अफ्रीका में गांधी जी ने वकालत की तालीम हासिल की, वो भी एक मुसलमान का अफ्रीका में एक मुसलमान ने ट्रेनिंग भी एक मुसलमान ने की थी। तो इस तरह से बुजुर्गों दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का जो रूल है वो तारीख बदले, ज़हरा बदले, लेकिन तारीख बदलने से तारीख सुनहरी अल्फाज में हमेशा लिखी जाएगी, लिखी हुई है, ये मिटा नहीं सकती। मैं इन चंद कलमात के साथ अपनी जगह बहुत बहुत शुक्रिया। वर्सेटाइल पर्सनालिटी कहते हैं, हमारी शख्सियत के मालिक डॉक्टर फरीदुद्दीन साजिद साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो है जिनके तालीमी डिग्रियों का जो रिकॉर्ड जो है नामजद किया गया है, वो भी इन तमाम से मुखातिब थे कि यौम आज़ादी में मुसलमानों का जो हिस्सा है, यकीनन इससे किसी का इनकार नहीं हो सकता। ये वो हकीकत है जिससे जो इनकार मुमकिन ही नहीं है। आपने बहुत ही पुरमक्स तकरीर करते हुए मुख्तलिफ हवालों के साथ इन तमाम जो है इन तमाम वाक़यात का उन्होंने अहाता किया जो एक अटल हकीकत है। और जैसे अभी हमारे तमीज़ुद्दीन साहब ने जो है आपको जो है गुलपोशी करते हुए एक मोहर सब्त कर दी है, आपकी जो खिदमत का वो उन्होंने करा। हज़रात किरामी, मैं गुजारिश करता हूँ जाहिद मोहम्मद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का विचार करें और अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ भी पेश करें। मैं चाहता हूँ कि वो अपने मुँह से वाशिंगटन DC के और अमेरिका के हालात अपने मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन वो बेहतर अंदाज में उससे ज़्यादा बयान कर सकते हैं वहाँ के अदबी माहौल के बारे में और खुद अपने बारे में। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और आपको मुखातिब करें। इसके बाद दोनों हस्तियों का इदारा खिदमत जलसा मुनक़िद होगा। हम दोनों से उनके ख्याल सुनने के बाद हम ये काम करें। जनाब जावेद मोहम्मद वाशिंगटन DC। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदुद्दीन साजिद साहब। तो मैं अपनी मुँह से अपनी तारीफ तो मैं 99 में यहाँ से गया एज ए स्टूडेंट गया। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे मास्टर्स करा। मैं 2001 से वहाँ जॉब कर रहा हूँ। करेंटली आई एम फेडरल एम्प्लॉई, अदलिया के लिए काम करता हूँ मैं, जुडिशरी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट और जितने फेडरल कोर्ट्स हैं उसके IT हेडक्वार्टर में मैं सुपरवाइज़र है। तो बात अदब की ये है कि वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में उर्दू की खिदमत जितनी हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन बहुत बड़ी तहरीक चलाती है वहाँ पर उर्दू की, मैं उसका ये साल ट्रस्टी हूँ।
हर साल हम लोग 2 या 3 मुशायरे कराते हैं। सबसे बड़ा मुशायरा होता है अक्टूबर में कि 2 बार खुद फरीदुद्दीन साजिद साहब उस मुशायरे में मौजूद थे। इंशाअल्लाह ये साल फिर शायद कोशिश चल रही है आपको बुलाने की। जी नहीं आप भी हैं। आपका नाम तस्नीम जौहर साहब। मैं असल में हमारे ख़ास दोस्त है वहाँ पर तहसीन मिर्ज़ा जी, आप उनके घर पर मुलाकात हुई थी आपसे, तो अगर अक्टूबर में वहाँ हो आप तो इंशाल्लाह मुशायरे में आप शिरकत करें। अब रहा सवाल यहाँ के मुशायरों में, मैं जब भी आता हूँ फरीदुद्दीन साजिद साहब एक आध मुशायरे में तो बुलाते ही, और तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए काम ऑलरेडी क्या 9:15 हो रहे, तो मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए। और अदनान साजिद साहब से भी गुजारिश है, वो शिकागो आते हैं वहाँ से चले जाते पलट के, तो मैं बोला अब के आए तो कैसा भी आप जो है वाशिंगटन DC आइएगा, वहाँ पे कुछ करते हैं। हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है हैदराबाद, तो ज़रूर वहाँ पे करते हैं। फिल्मों में तो डायलॉग बहुत बोलता हूँ, लेकिन तकरीर करते हैं फुल नहीं आता, तो मैं इससे इतना कहूँगा कि आए कि एजाज़ देना तो दूर की बात है, यहाँ पर मुझे दावत देना ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस महफिल में यहाँ पर बुलाया। जैसे तहजीब के लोगों में मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भी हमेशा कोशिश करा हूँ कि जितने भी मैंने 40 फिल्में की है अब तक, और तकरीबन जितने भी ज़्यादातर जो मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है उसमें मैं कोशिश करता था कि कॉमेडी के साथ कुछ एक अच्छा मैसेज दें, जैसा कि सूद के खिलाफ, ये जो लोग जो है इंटरेस्ट के पैसे लेके बर्बाद हो जा रहे हैं उसके खिलाफ, और शादी में जो डोरी का सिस्टम है उसके खिलाफ, ऐसा कॉमेडी के साथ साथ मैं हर फिल्म में जो है मैसेज देता था। इसकी वजह से जो है माशाल्लाह से मेरी फैमिली फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो माशाल्लाह से आपकी दुआ से मैं तकरीबन गल्फ, पूरा अमेरिका, तकरीबन हर जगह शोज़ करा, तो हर किसी का यही कहना था कि भाई आप जो है हैदराबादी फिल्मों को जो है आप जब आए इसके पास से जो है वो जो पहले गाली गलौज वगैरह ऐसा यूज़ करते थे, तो वो जो है बंद करा के उसको एक अपने हिसाब से अपने स्टाइल से करने गया, तो लोगों से काफ़ी मोहब्बत मिली। लोग छोटे छोटे बच्चों को जो है लाके मेरे से मिलाते हैं, तो उसका ये मेरे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो है मेरे काम को इसलिए सराहा जाता है कि मैं एक कॉमेडी, जैसा कि बताया, कॉमेडी के साथ मैं हमेशा मैसेज देने की कोशिश करा। बहरहाल चला, अब पिछले कोरोना से पहले की जो पोजीशन थी कोरोना के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल दोनों में जो है ऑनलाइन हो गया है, चीज़ फिल्में थिएटर में चल नहीं रही है, इसलिए फिल्में बन नहीं रही हैं, तो जो कुछ भी है आजकल ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब हो गया, बचाए, और कंटेंट भी बहुत हो गया, इतना कंटेंट हो गया कि आप बिलीव करिए आज के ज़माने में वक्त कम हो गया, कंटेंट ज़्यादा हो गया, लोगों के पास वक्त कम हो गया। कंटेंट इतना हो गया कि एक बार अगर शख्स फ़ोन लेके बैठ जाता, उसको 2-3 घंटे किधर जा रहे पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मामला बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर भी हम जितना भी काम करें अपने सेटिस्फैक्शन है, हम उसके जो है वो दिल से जो है हम खुश हैं कि चलो हम जितना भी करें अच्छा करें। और यहाँ पर जो है शहाबुद्दीन साहब भी हैं, शहाबुद्दीन साहब भी माशाल्लाह हैदराबाद का काफ़ी नाम रोशन करे, लाफ्टर चैलेंज में जाकर उन्होंने इनाम पाया। ये हैदराबादी ज़बान की खासियत है कि हैदराबादी ज़बान में इतनी मिठास है कि जहाँ भी जो है पहले एक ज़माना था, मैं बिलीव करेंगे कि मैं भी अब माशाल्लाह से 57 क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं बचपन में सुनता था कि दूसरे सिटी को गए तो हाओ नको मत नहीं बना, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 2006 में जब से हैदराबादी फिल्में शुरू हुई, आप बिलीव करेंगे कई स्टेट में, महाराष्ट्र जाता हूँ, कर्नाटक, लोग मेरे को ओपनिंग्स में बुलाते, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो वो लोग जो है अब उठा हो गया, अब वो लोग अपनी ज़बान यूज़ कर रहे हैं, अपने बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अपनी स्टाइल में बात करना, हैदराबादी स्टाइल में बात करना। तो ये जो है हैदराबाद की स्टाइल की जजा करना, ये हैदराबाद की ज़बान की खासियत है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साजिद साहब, डॉक्टर साहब से कि जो है बहुत बहुत शुक्रिया करेगा कि आपने जो मुझे हमें इन्वाइट किया। पहली बार आया मुझे, आके अच्छा लगा, सुकून दिख रहा माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। बेहद इंकिसारी के साथ अदनान साजिद हमसे मुखातिब थे, एक अजीम शख्सियत हैं और
जाहिद मोहम्मद साहब भी हमारे दरमियान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये दो अजीम हस्तियाँ बशमूल शहाबुद्दीन साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शहाबुद्दीन से बया सुनने की ख्वाहिश करें, उसके बाद एहतराम खिदमत का दरसा करें। नए वैसे सुना दीजिए, बहुत कुछ होगा आपको सुन लेंगे। उसके बाद हमारे मेहमानों की गुलपोशी और शरपोशी और तौसीफ़ में करा दीजिए। शहाबुद्दीन साहब खुद पाया से गुजर करना के अपने पाए की कलाम पेश ज़रूरी है तबला वगैरह। एक दो उसके हल्का सुना देता हूँ, एक लतीफ़ा जो आजकल हालात पे चल रहा है वो भी अभी एक ताज़ा लतीफ़ा बन गया। मैं मगरिब में गया था तो एक साहब ज़ोर ज़ोर से जो है दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ शिपलक बना दे तो झुंगुर बना दे, शिपलक बना दे झुंगुर बना दे। मैं ऐसा से बोला हज़रत कि अच्छे इंसान है, अच्छे खासे है, ये शिपलक बना दे झुंगुर बने। क्या बोलूँ भाई, हमारी बीवी बैल से डरते थे, शिपलक से झुंगुर से ज़्यादा डरते थे। तो ऐसे ऐसे लतीफ़े हंसने हंसाने के लिए हो जाते हैं चलते चलते। ऊट पटांग जो बातें बोलते हैं अक्सर लोग ये ऊट पटांग की लतीफ़े हो जाते हैं। और मैं एक साहब से बोला हज़रत ऐसे ही अदबी महफिल में अक्सर लोग एक मुहावरा एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि क्या ऊट पटांग बातें कर रहा, बोले है क्या बात था। तो उन्होंने बोले मियाँ सही बात बोले, आप वाकई अक्सर जो बात पे होते हैं अरे ऊट पटांग बातें करता हूँ। तो उन्होंने बोले ऐसी बात करना जो मुमकिन नहीं है। लोग ऐसे बातें कर देते हैं जैसे कि ऊट पे टांग डालना, उसको बोलते ऊट पटांग बात करते हैं, तो जो हो नहीं सकता। तो ऊट पटांग जो कुछ मालूमाती बातें भी होते हैं, हमारे जो पुराने जो सीनियर लोग हैं वो अक्सर जो मुहावरे इस्तेमाल करते हैं उसकी तह में अगर अपन जाएंगे तो उसका पता चलता है कि भाई वाकई जो है पहले मुहावरे इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल जैसा हमारे अदनान भाई बोले कि भाई हमारी जो गुफ्तगू है बातचीत है बाहर बड़ा सराहा जाता है हमारी बातचीत को गुफ्तगू को। यहाँ की जो बातचीत है हवा को कहीं को हौला हो गया वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। हम कलकत्ता वगैरह जाते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं, तो हमारी बातचीत पर भी बार बार वक्त अच्छे अच्छे लतीफ़े बन जाते हैं। और जो हमारे सीनियर जो लतायफ सुना करते थे, लतीफ़े सुनाते थे, बड़ा अदब होता था, बड़े मीठे मीठे लतीफ़े होते थे। एक हमारे सुलेमान साहब थे, देखिए आप, उस्ताद सुलेमान नहीं, उस्ताद सुलेमान साहब थे, सुलेमान खतीब साहब। वो तो शायरी पढ़ते थे, बड़े चोटी के शायर थे वो मिज़ा। तो उनकी आवाज़ ज़रा भारी थी। अक्सर एग्जीबिशन में हम घूमते फिरते थे, वो ज़माने में तो जब आवाज़ आती थी क्या है कि मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे बाबा, ये दुनिया से मैं बेजार हो गया, चांद में घुस जाना बोल को बोल रहा हूँ। तो इनके साथ सुलेमान साहब होते थे, हमारे हिमायतुल्लाह साहब, रेडियो चलता था, रेडियो पे कैसे जाते चांद में घुस जाते बोल के बोल रहे कैसा घुसते क्या बात मियाँ, बंजारा है वो घर है मेरा, रात में 4 बजे वॉशरूम को उठता हूँ ना, चांद खरीद आता अभी बोल को घुस जाता हूँ। इतने मीडिया उनसे मौला हज़रत कि आप इतने अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं, एक आध लतीफ़ा सुनाइए ताकि मैं अदबी महफिलों में सुना सकूँ। क्या लतीफ़ा सुनाऊँ मियाँ, मेरे साथ भी लतीफ़ा हो गया। बोले क्या हुआ? अरे तूफान, बाढ़ का पानी, पूरा बारिश, हमारे गांव में पूरे घरों में झोपड़ियों में पानी घुस गया हुआ। अब हम लोग आज आपको क्या करें, सूखी जगह पर ठहर गए ऊपर। हुकूमत को मालूम हुआ इंसानों को बचाना है, बोले तो हुकूमत क्या करेगी, हेलीकॉप्टर भेजाएगी। वो हेलीकॉप्टर आपको हमारे गांव के ऊपर कर फिर रहा, हमारे गांव के हौले लोग जिंदगी में हेलीकॉप्टर देखे ही ना उसमें बैठे। तो वो हेलीकॉप्टर वाला मेरे बाजू हेलीकॉप्टर उतार कर मेरे को बोला हज़रत ये इंसानों को ले जाकर ऊपर छोड़ना है, कितने चक्कर होते हैं? बोला सरकार कितने लोग आए, 3 चक्कर में खत्म हो जाते। वो हेलीकॉप्टर वाला बेचारा ले जा रहा छोड़ रहा, ले जा रहा छोड़ रहा, 3, 4, 5, 10 चक्कर हो गए मियाँ, लोग खत्म होने का नाम ही नहीं। बोला क्या हज़रत आप 3 चक्कर में खत्म होते? बोले 10 चक्कर हो गए, लोग खत्म नहीं हो रहे। मैं बोला सरकार ये हौले लोग हमारे गांव के जिंदगी में हेलीकॉप्टर देख रहे ना उसमें बैठाई, तुम लेक्चर को छोड़ के जा रहे हो, लोग किन को वापस आते जा रहे बोले। इतने अच्छे मीठे लतीफ़े होते थे। और एक ताज़ा लतीफ़ा हो गया।
गुल्लू में बैठे हुए इसलिए एक साहब ऐसे ही गुजर हो रहा था, चलते हुए आ रहे थे, उनको अचानक आवाज आई, रुक जाओ, बोलते नो रुक गए। 2 मिनट 2 सेकंड में जो है फट से दीवार गिरी। बोले भाई कौन आवाज दिया मालूम नहीं, मेरी जान बच गई, दीवार गिरती मैं मर जाता था, गायब से आवाज आई। और आगे बढ़े, रोड पार होने जा रहे थे, फिर आवाज आई, ठहर जा, बोलते ठहर गए, स्पीड से कार गए 120 की स्पीड से। बोले भाई कौन आवाज दे रहे, रुक जाओ, मैंने रुक गया, ठहर जाओ, मैंने दीवार गिरी, मैं रुक गया, कार एक्सीडेंट से बच गया मैं। वो साहब से रहने गए, इधर देखो, बोले भाई साहब आखिर कौन है आप, मेरी जान बचा रहे हैं आप, ये आवाज कहाँ से आ रही? तो गायब से आवाज आई, मैं हादसों से बचाने वाला फरिश्ता हूँ। तो इधर उधर देखते बोले भाई साहब मेरी निगाह खानी हो, देखो तो आप कांधे में। तो ऐसे मीठे मीठे लतीफे जो पठान हो जाते हैं, वक्त का भी तकाजा है, मुझे भी प्रोग्राम में जाना है। तो पाया जो है ये बड़ा ही अजीब और गरीब आइटम हो गया। जब ये लाफ्टर 40 में हम गए थे 2005 में, बॉम्बे में बहुत दिन रहने का इत्तेफाक हुआ। पहले तो मैं सुनाया नहीं था वहाँ पर, तो उसके बाद वो एक हमारे साथी वो जो लड़का है अपना हाजी कमाल, यहाँ पर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, जब यहाँ पर वो लोग आए थे ऑडिशन के लिए, तो ये बच्चा सुना दिया था। तो वहाँ हमारे जो डायरेक्टर थे बॉम्बे में, उन्होंने बोले यार वो जो लड़का जो था जो छोटा सा वो पाया पाया सुनाया था। तो हमारे साथ के भी जानी साहब थे, तो वो बोले अरे नहीं वो तो आइटम हमारे साहब भाई सुनाते। बोले यार सुनाओ। मैं बोला भैया बॉम्बे में कौन सुनेंगे गया है। तो जब मैं गया, जब हम लोग का रिहर्सल चल रही थी 8-10 दिन, तो फ्री बड़ी कठिन दौर था, कठिन वक्त था। अब और ख़ास बात ये है कि साहब जब हम रिहर्सल कर रहे थे अदनान भाई, तो 8 दिन तो बगैर पब्लिक के हम आइटम सुनाए हवा में, ऐसे सुनाना पड़ा जैसे कि पब्लिक बैठी हुई है। माइक लेके जाना, उसी तरह एंट्री लेना, उसी तरह। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता हूँ, जो बता रहा हूँ जो वाक़यात होते हैं आर्टिस्टों के साथ। तो जब मैं सुनाया तो हमारे सिद्धू साहब थे, हमारे जज शेखर सुमन साहब थे, बहुत इंजॉय किए, बहुत इंजॉय किए। एडिट होता है वो 1 घंटे में सारे का सारा प्रोग्राम हम लोग को दिखाना पड़ता है, पब्लिक वगैरह दिखाना पड़ता है, फिर आर्टिस्ट जजेस को दिखाना, तो बहुत सा कट हुआ, वरना बहुत मज़ा आया। तो हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर ख़वाल गुजरे अजीज़ मियां साहब को इत्तेफाक से यहाँ आए थे, इनसे कहा गया कि भाई आप बड़े महान ख़वाल हैं, शारमीनार के पास हमारी होटल है, यहाँ बैठकर अगर आप पाया भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजीज़ मियां साहब अपने साजिंदों के साथ, अपने साथियों के साथ बैठकर जब ये पाया बेचने लगे, तो आज सारी दुनिया में पाया मशहूर हो गया। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बहुत से लोग, बहुत से तकरीबों में बच्चे वगैरह स्कूलों के जैसे 15 अगस्त के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आवाज़ तो मेरी रहती है, लेकिन वो लोग एक्टिंग करते हैं, कोई पलंग का पाया लेके गाना गाता है, कोई लकड़ी का पाया, कोई जो है आजकल डिशेस वगैरह भी दिखाते हैं। खैर वो खिस्सा मुख्तसर। तो अजीज़ मियां साहब पाया कैसे सुनाएंगे अपने साथियों के साथ। पाया पाया बीच में पाया, रख रख के खाने में मजा आया। यह पाया पाया, यह पाया पाया, यह पाया पाया, यह पाया पाया, यह पाया मियाँ ये है वो पाया। जब क्लिंटन अमेरिका से हिंदुस्तान आया, दिल्ली में बैठकर हैदराबाद का पाया मंगाया। क्लिंटन को नाश्ते में जब हैदराबाद का पाया खिलाया, तो क्लिंटन अमेरिका जाते जाते जहाज में उछल उछल के गाया, यह पाया पाया, यह पाया पाया, यह पाया पाया, यह। वैसे तो बड़ा लंबा है, मैं निजामाबाद में यही सुना रहा था। तो
उसमें एक शेर एक्स्ट्रा किया, मैं तो बाद में मेरे को पुलिस ढूंढने लगी, टोपी वाला काम उसको पकड़ के लाओ बोलते, वहाँ के लोग बुरा मान गए। तो मैं राव में सुना दिया, उसमें मैं ये मिलाया था, मियाँ पाया क्लिंटन ने पाया खाया, बुश ने खा पाया खाया, ये देखकर केसीआर ने 4 पाए पार्सल मंगाया। जैसे ही केसीआर ने हैदराबाद का पाया खाया, पाया खाते ही आंध्र वालों को गली गली भगाया, ये है पाया पाया, ये बोल रहे वो बोला सा हमारा भगा बोल के साथ पीछे पड़ गए। तो खैर किस्सा मुख्तसर अब हमारे, क्योंकि आप लोग हंसी का मूड बना लिए, ये म्यूजिक बस वगैरह पे जो आइटम हो जाते हैं, हंसी का सामान हो जाता है। और पहले ज़माने में जो अदबी यानी गीत भी होते थे तो बड़े अच्छे अंदाज के होते थे। चंद महमूद साहब गाते थे, मुकेश जी गाते थे, मनारे जी गाते थे, ये अजीब अजीब गाने आ रहे। देखिए हाल हाल में गाना आके गया कि मुन्नी बदनाम हो गई डाली तेरे लिए हो गई, हफ्ता 2 हफ्ते महीना 2 महीने रहते हैं, गाने निकल जाते हैं। आज भी पुराना गाना हम लगाते हैं, तरत महमूद साहब का है, मुकेश जी का, तो बैठे बैठे बुजुर्ग लोग के पैर हिलते हैं, बच्चे भी आराम से सो जाते हैं। तो ये जो गीत होते हैं नए गीत, ये नौजवानों को, बच्चों को क्या हो जाता मालूम नहीं, बार बार हम फनकारों को तंग करते हैं, पर वही गाना वही गाना वही गाना। तो जगजीत सिंह साहब के लिए ताली बजाइए जोरदार। हमारे हिंदुस्तान की नाम से ये सारे बड़ा इन्होंने हिंदुस्तान का नाम किया सारी दुनिया में, आज भी लोग उनको सुनते हैं। तो मैं जगजीत साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था पुणे में, अजीब मसला हो गया। तो बच्चे गेट टुगेदर महफिल थी, बच्चे आके जगजीत साहब को बोलने लगे, वो मुन्नी बदनाम हो गई सुना बोलते, ये बदनाम, ये बोले यार मुन्नी बदनाम, मैं किधर मुन्नी किधर मैं गजल गा रहा। तो बड़े लोग बोले यार बच्चे जब बोले सुना, तो जगजीत सिंह साहब मुन्नी बदनाम हो गए सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई डालिंग तेरे लिए, मैं झंडो बाम हुई डालिंग तेरे लिए। अब हद तो ये हो गए साहब, अलताफ राजा साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था मैं जयपुर में, उसको भी बोले वो तुम तो ठहरे परदेसी बहुत हो गए, आप मुन्नी बदनाम हुए सुना दो। तो अलताफ राजा सुनाने लगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं बाद में झंडो बाम लगा के देखा, इतनी जलन हो रही साहब, मैं बोला ये हल्दी लगा के तो ये आगे की काम वाले माजरत चाहता हूँ अगर कुछ कुछ नहीं छुपे, क्योंकि हमारा चैनल मिजाज है, हंसते बोलते जिंदगी गुजारते हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। बावजूद गुना वो मुसीबत के आप तशरीफ लाए, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपका एहतराम खिदमत का दरसा किया गया था। दनन भाई, आपको शाहब दक्कन का खिताब किया गया था, तालियों की गुंजाइश शाह भाई का इस्तेमाल कीजिए, शाहब दक्कन के खिताब से नवाजा गया था। अब आइए हमारे दरमियान 2 अजीम शख्सियतें आई हैं, एक तो काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन नज़वी और डॉक्टर जहांगीर एहसास, इनको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन हम पहले एहतराम खिदमत का जलसा मुनाफिद करेंगे। और क्योंकि अदनान भाई को ज़हीराबाद जाने का है, तो मुझसे पहले वादा ले ली थी कि बाबा मुझे जल्दी छोड़ देना, तो मैंने उनसे वादा कर लिया था। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अदनान साजिद साहब और जाहिद मोहम्मद साहब, यहाँ पर 2 कुर्सियाँ आपके लिए रखी गई हैं, वहाँ पर तशरीफ लाएँ। और उसके बाद डॉक्टर फरीद साजिद साहब गुल्लर अदा की खुशी कराएंगे। साजिद साहब, जावेद मोहम्मद साहब की खामोशी करते हुए
गुल्ला दादा की शानपोशी कर रहे हैं। इन दो अजीम शख्सियात को रब साले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास जनाब हकीम सैयद सिराजुद्दीन रिजवी साहब, सरज़मीन अदरकत के मुमताज़ अदाकार मेरी मुराद जनाब अदनान साजिद खान साहब, मेहमानान ज़ीवाबार जनाब जावेद मोहम्मद साहब और इदारा अदब सादिक की रूह रवा डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब, डॉक्टर नसीम जैदी साहब, मुमताज़ शायरा तस्नीम जौहर साहिबा, जनाब सरूर हीराबादी साहब और हाज़िरीन महफिल। इदारा अदब सादिक मैं समझता हूँ कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये वो इदारा है जो अपनी मिसाल पर और मखलूक पर काविशों से वक्त और हालात की मुनासिबत से ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करता है कि ये मौज़ूआत हमें सोच व फिक्र की दावत देते हैं। आज का ये जो इजलास रखा गया है 15 अगस्त की मुनासिबत से हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल ये उन्वान किया गया है। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये उन्वान अपने आप में इतना वास्ट, इतना वसीत है, इतना फैला हुआ है। अगर इस मौजू पर अगर हम मरहलावार कहते जाएं तो मैं समझता हूँ कि कई महीनों दरकार होंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी का अक्सर जिक्र किया जाता है सन 1857 से, लेकिन हकीकी तौर पर देखा जाए तो इस आज़ादी जिदोजहद आज़ादी का बिगुल जो जिस जियाले बादशाह ने बजाया, मैं समझता हूँ कि वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह रहे हैं। क्योंकि आज तारीख को कुछ इस अंदाज से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों के आसार तारीख के सफ़हात से अनहा हो जाए, गायब हो जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आए दिन मुस्लिम जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से जितने जहदकार इस तहरीक से वाबस्ता रहे, मैं समझता हूँ कि उनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात की मुनासिबत से एक तसलसल के साथ साल के 365 दिन, मैं समझता हूँ कि ये जो दौर, जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, ये दौर शायद ही हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी देखा होगा। और यकीन है चूँकि हम जिंदा कौम हैं, वक्त और हालात भले ही नामुसाइल हैं, लेकिन अपनी मिसाल पर काविशों से, कोशिशों से हम इस तसल्सल को जारी रख सकते हैं। चाहे इनक़लाब ज़िंदाबाद हो या फिर क्विट इंडिया हो या फिर इस तरह के कई ऐसे नारे जो तहरीक आज़ादी में इनक़लाब का बायस बने, सब के सब मुसलमानों की जानिब से दिए गए। और हमारी ये सितमज़रीफ़ी रही कि बारहा हमें जब कभी इक़्तिदार या फिर अवामी सतह पर जो इदारे काम कर रहे हैं उस पर शराकत दारी की बात की जाती है, तो हमें
یا تو نظرانداز کیا جاتا ہے یا اگر ہم بزور مطالبہ کریں تو ہمیں پاکستان کا حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں، اور جن کو یہاں جو رہنا تھا آپ ہمارے اجداد نہیں رہ گئے۔ تو ایک طرح کا ایک ڈر و خوف کا ماحول، ایک نفسیاتی الجھن کا مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان بآسانی اس کا شکار ہو بھی رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جذباتیت سے روگردانی کرتے ہوئے ہوش کے نام لیں، اور موجودہ حالات میں ہمارے اپنے جو اکابرین رہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی طویل فہرست ہے کہ انڈیا گیٹ پر آپ نے شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اس میں مجاہدین آزادی کے جتنے نام ہیں درج اس پر کرتا ہے، اس میں قریب 90% مسلم مجاہدین آزادی کے نام ہیں۔ اس سے بڑا بین ثبوت، کھلا ثبوت کیا چاہیے کہ ہم سے یہ ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا نہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں نظریاتی اختلاف کو بالائے طاق رکھنا وقت کا اہم تقاضا ہے، تبھی ہم اجتماعی طور پر نئی نسل کو ہمارے اجداد کی جانب سے جو اس ملک عزیز کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مہم کی شکل میں منتقل کر سکیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جلسے ہوں گے، گھر جائیں گے اور سو جائیں گے۔ فیض نے کہا تھا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ بھلے ہی آج ہندوستان آزادی کے 76ویں سال کا جشن منا رہا ہے، لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں تو یہ ان 76 سالوں میں جو خواب ہمارے اجداد نے دیکھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اسی طرح آج مسلمان اور اردو یہ دو ایسے عنوانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موجودہ ہندوستان میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مسلمان ہیں تو اپنی شناخت، اپنے تشخص کے ساتھ وہ زندہ رہنا ہے، اور اردو زبان اگر ہمیں دکھائی دے گی تو اس کے اپنے رسم خط کے ہی حوالے سے، ورنہ وہ ایک مردہ زبان کہلائے گی۔ اردو کہلائے گی لیکن اس کی اپنی لپی نہیں رہے گی، چونکہ وقت اور حالات اس بات کی مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں مزید کچھ کہوں، تو ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بے شکریہ۔